ओम शांति। आज के बाबार 12-10-2020 मुरली। आज बाबा বলছেন যে বাচ্চি আমি তোমাকে খুব ভালো সাঁতার শেখাচ্ছি। তো তোমরা এত সুন্দর সাঁতার শিখে যাচ্ছ যে তোমরা এই কলিযুগ ভবসাগরকে পার করে তোমরা সত্যযুগে চলে যাচ্ছ। তারপরে আজকে বাবা বলছেন যে তোমরা বাবাকে এত সাহায্য করছো ভারতকে স্বর্গ বানাতে, তো তার রিটার্ন কি পাবে? তো বাবা বলছে তার রিটার্ন হচ্ছে যে বাবা তোমাকে এত শক্তিশালী বুদ্ধিমান বানিয়ে দেবে যে আধা কল্প মানে 2500 বছর তোমাকে কারো সাহায্য নিতে হবে না বা কারো থেকে রায় পরামর্শ নিতে হবে না। বাবা বলছে সারা দুনিয়ার মানুষ মুক্তি পাওয়ার জন্য কত চেষ্টা করছে, কত জপ তপ করছে, কত পুরুষার্থ করছে, কিন্তু এই ড্রামার মাঝখান থেকে কোনো আত্মাই ডাইরেক্ট পরমধাম যেতে পারবে না বা সদাকালের জন্যে মোক্ষ পাবে না যতক্ষণ শিব বাবা না আসছে। বাবা নিজেই যখন এসে পরমধামের রাস্তা দেখাবেন তবেই সবাই পরমধাম যেতে পারবেন। তারপরে বাবা বললেন যে মানুষ একটু কোনো গ্রহ নক্ষত্র বা চাঁদে যখন যায় তখন তাদের কত সুনাম, কত সুখ্যাতি তাদের ছড়িয়ে যায় যে সে এত মাইলস উপরে গেল, কিন্তু তোমরা পরমধাম যাচ্ছ, কত উপরে যাচ্ছ, তো তোমাদের মহিমা গুপ্ত আছে, মানুষ তোমাদেরকে চিনতে পারে না। তারপরে বাবা বলছেন যে আমি ব্রহ্মা দ্বারা একটা নতুন সৃষ্টি রচনা করছি। তো শুধু এক ব্রহ্মা দ্বারা তো হবে না, ব্রহ্মার মুখ থেকে যে মুখবংশাবলী সন্তান রচনা হয়েছে ব্রাহ্মণ আর ব্রাহ্মণী, তাদের সাহায্য ছাড়া এত বড় বিশ্ব পরিবর্তনের কাজ সম্ভব নয়। তো ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণী সবাই মিলে এখন আমরা বিশ্বকে পরিবর্তন করছি। তো এভাবে বাবা খুব সুন্দর সুন্দর আজকে মহাবাক্য বলেছেন। চলুন আমরা বাবার পুরো মুরলি শুনব। मीठे बच्चे बाप आए हैं तुम बच्चों को तैरना सिखलाने, जिससे तुम इस दुनिया से पार हो जाते हो। तुम्हारे लिए दुनिया ही बदल जाती है। বাবা বলছেন যে মিঠে বাচ্চে আমি এসেছি তোমাদেরকে ভালো সাঁতার শেখাতে, যাতে তোমরা এই পুরনো দুনিয়া থেকে পার হয়ে নতুন দুনিয়ায় যেতে পারো। আজকের প্রশ্ন হচ্ছে जो बाप के मददगार बनते हैं उन्हें मदद के रिटर्न में क्या प्राप्त होता है। বাবা জিজ্ঞেস করছেন যারা বাবার মদদগার বাচ্চা তারা বাবা থেকে রিটার্নে কি পায়। তো বাবা উত্তরে বলছেন जो बच्चे अभी बाप के मददगार बनते हैं उन्हें बाप ऐसा बना देते हैं जो आधा कल्प कोई की मदद लेने की व राय लेने की दरकार ही नहीं रहती। कितना बड़ा बाप है, कहते हैं बच्चे तुम मेरे मददगार नहीं होते तो हम स्वर्ग की स्थापना कैसे करते। বাবা বলছেন যে তোমরা এখন আমার মদদগার বাচ্চা হচ্ছ, আমার বিশ্ব পরিবর্তনের কাজে তোমরা আমাকে সহযোগ দিচ্ছ, তো আমি তোমাদেরকে এতই শক্তিশালী বানিয়ে দেব যে আধা কল্প মানে সত্যযুগ আর ত্রেতা যুগ তোমাদেরকে কারো সাহায্য নেওয়ার কোনো দরকার থাকবে না বা কারো থেকে রায় পরামর্শ নেওয়ারও দরকার থাকবে না। তো এত বড় বাবা, তাকে আমরা মদত করছি। তো বাবা বলছেন যে এখন আমি তোমাদের সাহায্যে স্বর্গ স্থাপন করছি, যদি তোমরা আমাকে সাহায্য না করতে তাহলে আমি স্বর্গ স্থাপন কিভাবে করতাম। ओम शांति। मीठे मीठे नंबरवार अति मीठे रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप समझाते हैं, क्योंकि तुम बच्चे बेसमझ बन गए हो। रावण ने बहुत बेसमझ बना दिया है, अब हमको कितना समझदार बनाते हैं। कोई ICS का इम्तहान पास करते हैं तो समझते हैं बहुत बड़ा इम्तहान पास किया है। अभी तुम तो देखो कितना बड़ा इम्तहान पास करते हो। जरा सोचो तो सही पढ़ाने वाला कौन है।
বাবা বলছেন যে রাবণ তোমাদেরকে কত অবুঝ বানিয়ে দিয়েছিল, বাবা তোমাদেরকে কত সমঝদার বানাচ্ছে, বুদ্ধিমান বানাচ্ছে। কেউ যদি আইসিএস এর পরীক্ষা পাস করে তো তাকে খুবই বুদ্ধিমান মানা হবে। তো তার থেকেও বড় তোমরা এখন পরীক্ষা পাস করছো, তো তোমরা কত বুদ্ধিমান হয়েছো। তো একটু ভাবো যে তোমাদেরকে কে পড়াচ্ছে। पढ़ने वाले कौन हैं यह भी निश्चय है, हम कल्प कल्प हर 5000 वर्ष बाद बाप टीचर सतगुरु से फिर मिलते ही रहते हैं। बाबा बोलছেন আমরা প্রত্যেক কল্পে কল্পে বাপ টিচার সদ্গুরু মানে বাবাই আমাদের পিতা, টিচার আর সদ্গুরু, তো ওনার সঙ্গে আমরা কল্প কল্প মিলছি। सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो हम कितना ऊंच ते ऊंच बाप द्वारा ऊंच वर्षा पाते हैं। टीचर भी वर्षा देते हैं ना पढ़ा करके, तुमको भी पढ़ा करके तुम्हारे लिए दुनिया को ही बदल देते हैं। नई दुनिया में राज्य करने के लिए भक्ति मार्ग में कितनी महिमा गाते हैं, तुम उन द्वारा अपना वर्षा पा रहे हो। বলছে ভক্তি মার্গে যে ভগবানের জন্য কত মহিমা গুণগান কীর্তন নাম জপ হচ্ছে, সে ভগবান স্বয়ং তোমাকে পড়াচ্ছে, স্বয়ং তোমাকে বর্ষা দিচ্ছে, এটা কত বড় কথা। तो यह भी तुम बच्चे जानते हो कि पुरानी दुनिया बदल रही है। तुम कहते हो हम शिव बाबा के बच्चे हैं, बाप को भी आना पड़ता है पुरानी दुनिया को नई बनाने। त्रिमूर्ति के चित्र में भी दिखाते हैं कि ब्रह्मा द्वारा नई दुनिया की स्थापना, तो जरूर ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ चाहिए। বলছেন যে ব্রহ্মা দ্বারা নতুন সৃষ্টি রচনা, এটা তো শাস্ত্রেও দেখানো হয়েছে। তো ব্রহ্মা একা তো করতে পারবে না, তো ব্রহ্মার মুখ বংশাবলী সন্তান ব্রাহ্মণ আর ব্রাহ্মণীও চাই। তো আমরা হচ্ছি সেই ব্রাহ্মণ আর সেই ব্রাহ্মণী। तो ब्रह्मा तो नई दुनिया स्थापन नहीं करते, रचयिता है ही बाप। ब्रह्मा द्वारा कराচ্ছেন शिव बाबा। तो कहते हैं मैं आकर युक्ति से पुरानी दुनिया का विनाश कराए नई दुनिया बनाता हूँ। नई दुनिया के रहवासी बहुत थोड़े होते हैं। गवर्नमेंट कोशिश करती रहती है कि जनसंख्या कम हो, अब कम तो नहीं होगी। लड़ाई में करोड़ों मनुष्य मरते हैं, फिर मनुष्य कम थोड़े ही होते हैं, जनसंख्या तो फिर भी बढ़ती जाती है। यह भी तुम जानते हो। तुम्हारी बुद्धि में विश्व के आदि मध्य अंत का ज्ञान है। तुम अपने को स्टूडेंट भी समझते हो, तैरना भी सीखते हो। कहते हैं ना नैया मेरी पार करो। बहुत नामी ग्रामी होते हैं जो तैरना सीखते हैं। अभी तुम्हारा तैरना देखो कैसा है। বলছি যারা খুব ভালো সাঁতার কাটতে পারে তাদের খুব নাম হয়। তো বাবা বলছেন যে তোমরা তো হচ্ছো এই কলিযুগ ভবসাগরকে পার করছো, তো তোমাদের মহিমা তাদের থেকে উঁচু। एकदम ऊपर में चले जाते हो फिर यहाँ आते हो, वह तो दिखलाते हैं इतने माइल्स ऊपर में गए। तुम आत्माएं कितना माइल्स ऊपर में जाते हो। यह तो स्थूल वस्तु है जिसकी गिनती करते हैं, तुम्हारा तो अनगिनत है। বাবা বলছেন কেউ যদি চাঁদে যায় বা অন্তরিক্ষে যায়, বিভিন্ন গ্রহে যায়, তো তাদের কত মহিমা হয়, কত গুণগান হয় যে এত উঁচু মাইল একটা গ্রহে ওরা গেছে। তো বাবা বলছে তোমরা তো তার থেকে অনেক উঁচু পরম ধাম, কত মাইলস যেটা তোমরা গুনতেও পারবে না, তো এত উঁচু তোমরা যাচ্ছ। तुम जानते हो हम आत्माएं अपने घर चली जाएंगी जहाँ सूर्य चांद आदि नहीं होते। तुमको खुशी है, वह हमारा घर है, हम वहाँ के रहने वाले हैं। मनुष्य भक्ति करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं मुक्ति धाम में जाने के लिए।
परंतु कोई जा नहीं सकते। मुक्ति धाम में भगवान से मिलने की कोशिश करते हैं, अनेक प्रकार के यत्न करते हैं। कोई कहते हैं हम ज्योति ज्योत में समा गए, कोई कहते हैं मुक्ति धाम में जाएं। मुक्ति धाम का किसी को पता नहीं है। तुम बच्चे जानते हो बाबा आया हुआ है, अपने घर ले जाएंगे। अच्छे अनेक मानुष चाइछे जे आमरा सदाकालेर जन्य मोक्ष प्राप्त करिनी बा आमरा मुक्तिते चले जाई बा आमादेर निश्चय कोथाओ एकटा जायगा आछे जेखान थेके आमरा एसेछि, तो सेई जायगा कोथाय, तो तारा एत चेष्टा करेও निजेर आसल धामके चिनते पारछे ना। तो बाबा बोलछेन जे आमी एसेछि तोमादेरके निजेर पलके बसिए परम धाम निये जाबो। तो मीठा मीठा बाबा आया हुआ है, हमको घर ले जाने लायक बनाते हैं। जिसके लिए आधा कल्प पुरुषार्थ करते भी बन नहीं सके हैं, न कोई ज्योति में समा सके, न मुक्ति धाम में जा सके, न मोक्ष को पा सके। भक्ति मार्गे मानुष मुक्तिते जावार जन्य जा किछु चेष्टा करेछे, पुरुषार्थ करेछे, सब किछुई व्यर्थ। केन যতক্ষণ शिव बाबा एसे परम धामेर रास्ता ना देखाबे ततक्षण आर केउ परम धाम जेते पारबे ना। तो जो कुछ पुरुषार्थ किया वह व्यर्थ। अभी तुम ब्राह्मण कुल भूषणों का पुरुषार्थ सत्य सिद्ध होता है। एखन आमरा बाबार श्रीमते जा पुरुषार्थ करछि सेटा सत्य सिद्ध होबे। तो यह खेल कैसा बना हुआ है, तुमको अभी आस्तिक कहा जाता है। बाप को अच्छी रीति तुम जानते हो और बाप द्वारा सृष्टि चक्र को भी जाना है। बाप कहते हैं मुक्ति जीवन मुक्ति का ज्ञान कोई में भी नहीं है, देवताओं में भी नहीं है। बाप को कोई नहीं जानते तो किसी को ले कैसे जाएंगे। कितने ढेर गुरु लोग हैं, कितने उन्हों के फॉलोअर्स बनते हैं। सच्चा सच्चा सतगुरु है शिव बाबा, उसका तो चरण है नहीं। वह कहते हैं हमको तो चरण है नहीं। बोलছেন आमी तो आसल सतगुरु अथच आमार तो पा नेই जे তোমরা আমার পা টাচ করবে বা তোমরা চরণ ধুলাই করে জল খাবে। वह कहते हमको तो चरण है नहीं, मैं कैसे अपने को पूजवाऊँ। बच्चे विश्व के मालिक बनते हैं, उनसे थोड़े ही पूजवाऊँगा। भक्ति मार्ग में बच्चे बाप के पांव पड़ते हैं, वास्तव में बाप की प्रॉपर्टी के मालिक बच्चे हैं, परंतु नम्रता दिखलाते हैं। छोटे बच्चे आदि सब जाकर पांव पड़ते हैं। यहाँ बाप कहते हैं तुमको पांव पड़ने से भी छुड़ा देता हूँ। लौकिक दुनियाते बाच्चारा निजेर माता पितार चरण स्पर्श करे, गुरुदेर स्पर्श करे, तो बाबा बोलছে আমি তোমার পিতাও আছি, শিক্ষকও আছি এবং সদ্গুরু, কিন্তু আমার পা নেই যে তোমরা আমার চরণ স্পর্শ করবে, বরঞ্চ আমি তোমাদের রোজ নমস্তে করছি। তো বাবা আমাদের কাছে কত নম্র হয়ে যাচ্ছেন। तो यहाँ बाप कहते तुमको पाँव पड़ने से भी छुड़ा देता हूँ। कितना बड़ा बाप है। कहते हैं तुम बच्चे मेरे मददगार हो। तुम मददगार नहीं होते तो हम स्वर्ग की स्थापना कैसे करते। বলছে তোমরা যদি আমাকে হেল্প না করতে তাহলে আমি কি করে স্বর্গ স্থাপন করতাম। तो बाप समझाते बच्चे अभी तुम मददगार बनो, फिर हम तुमको ऐसा बनाते हैं जो कोई की मदद लेने की दरकार ही नहीं रहेगी। अच्छा আমি তোমাদেরকে এত উঁচু বানাবো যে কারো হেল্প নেওয়ার কোনো প্রয়োজন হবে না। तुमको कोई के राय की भी दरकार नहीं रहेगी। यहाँ बाप बच्चों की मदद ले रहे हैं। कहते हैं बच्चे अभी छी छी मत बनो। बाबा आबार बोलছেন बच्चे तुम्हें अपवित्र हो ना, माया से हार नहीं खाओ, नहीं तो नाम बदनाम कर देते हैं। बॉक्सिंग होती है ना, तो उसमें जब कोई जीतते हैं तो
तो वाह वाह हो जाती है। बाबा बोलছেন যদি কেউ बॉक्सिंगे जीते जाए ताहले तार कत महिमा है। हार खाने वाले का मुंह पीला हो जाता है। यहाँ भी हार खाते हैं। यहाँ हार खाने वाले को कहा जाता है काला मुंह कर दिया। आए हैं गोरा बनने के लिए, फिर क्या कर देते हैं कि कमाई सारी चट हो जाती है, फिर नए सिरे शुरू करना पड़े। बाप के मददगार बन फिर हार खाए, नाम बदनाम कर देते हैं। बोलছে বাবার मददगार बादशाह হয়ে তারপরে সে মায়ার কাছে হার খেয়ে যাচ্ছে, তো আরও বাবার नाम खराब করছে। दो पार्टी है ना, एक है माया के मुरीद, एक है ईश्वर के। तुम बाप को प्यार करते हो। बाबा बोलছেন যে দুরকম পার্টি আছে, এক হচ্ছে মায়ার যারা গ্রাহক আর এক হচ্ছে বাবার বাচ্চা। তো আমরা কাকে ভালোবাসছি? বাবাকে। तो तुम बाप को प्यार करते हो। गायन भी है ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि, तुम्हारी है प्रीत बुद्धि, तो तुमको नाम बदनाम थोड़े ही करना है। বলছে এখন বিনাশকালে তুমি বাবার সঙ্গে বিপরীত বুদ্ধি हो ना, बाबार नाम खराब करो ना। तुम प्रीत बुद्धि फिर माया से हार क्यों खाते हो? हारने वाले को दुख होता है, जीतने वाले पर ताली बजाते वाह वाह करते हैं। तुम बच्चे समझते हो हम तो पहलवान हैं, अब माया को जीतना जरूर है। बाप कहते हैं देह सहित जो कुछ देखते हो उन सबको भूल जाओ। माँ मेकम याद करो। বলছেন তুমি চোখে যা কিছু দেখছো সব কিছুকে ভুলে जाओ। माँ मेकम याद करो, माया ने तुमको सतो प्रधान से तमो प्रधान बना दिया है, अब फिर सतो प्रधान बनना है। माया जीते जगत जीत बनना है, यह है ही हार और जीत, सुख दुख का खेल। बाबा সেটা হচ্ছে हार आर जय एवं सुख दुखेर खेला। रावण राज्य में हार खाते हैं, अब बाप फिर वर्थ पाउंड बनाते हैं। बाबा ने समझाया है एक शिव बाबा की जयंती ही वर्थ पाउंड है। বলছে शिव बाबा जयंती হচ্ছে सबथेके मूल्यवान। अब तुम बच्चों को ऐसा लक्ष्मी नारायण बनना है, वहाँ पर घर घर में दीप माला रहती है, सबकी जोत जग जाती है। बाबा बोलছেন যে সত্যযুগে মাটির প্রদীপ জাগাতে হবে না, কিন্তু প্রত্যেক আত্মরূপী প্রদীপই জ্বলছে। তো আসল দীপাবলি সত্যযুগে যে প্রত্যেক আত্মার জ্যোতি জেগে আছে। মেন পাওয়ার সে জ্যোত জগতি है। এখন সঙ্গম যুগে বাবা হচ্ছেন মেন পাওয়ার, তো পাওয়ার হাউস থেকে আমাদের জ্যোতি জেগে গেছে। बाबा कितना सहज रीति बैठ समझाते हैं। बाप के सिवाय मीठे मीठे लाडले सिखी लदे बच्चे कौन कहेगा? रूहानी बाप ही कहते हैं हे मेरे मीठे लाडले बच्चों, तुम आधा कल्प से भक्ति करते आए हो, वापिस एक भी जा नहीं सकते। बाप ही आकर सबको ले जाते हैं। तुम संगम युग पर अच्छी रीति समझा सकते हो बाप कैसे आकर सब आत्माओं को ले जाते हैं। दुनिया में इस बेहद के नाटक का कोई को भी पता नहीं, यह बेहद का ड्रामा है, यह भी तुम समझते हो और कोई कह न सके। বলছে এই সৃষ্টি একটা বিশাল নাটক, এটা আমরাই এখন জানছি যে সৃষ্টির ড্রামা একটা, কিন্তু বাইরের লোক তো তারা জানতে পারছে না। अगर बोले बेहद का ड्रामा है तो फिर ड्रामा का वर्णन कैसे करेंगे? यहाँ तुम 84 के चक्र को जानते हो, तुम बच्चों ने जाना है, तुमको ही याद करना है। तो बाप कितना सहज बतलाते हैं, भक्ति मार्ग में तुम कितने धक्के खाते हो, तुम कितना दूर स्नान करने जाते हो। बाबा বলছেন ভক্তি মার্গে তোমরা কত ধাক্কা খাচ্ছিলে,
কত দূরে দূরে গিয়ে গঙ্গা স্নান করছিলে। एक लेख है, कहते हैं उसमें डुबकी लगाने से परियां बन जाते हैं। একটা মানসরোবর আছে না, যেখানে বলা হয় যে ডুবকি লাগালে মানুষ পরি হয়ে যায়। अभी तुम ज्ञान सागर में डुबकी मार परी ज़्यादा बन जाते हो। বলছে এমন কোনো জলের সরোবর নেই যেখানে ডুবকি লাগালে পরি হওয়া যাবে, কিন্তু এই জ্ঞান সাগরে ডুবকি লাগালে আমরা পরিজাদা হয়ে যাচ্ছি। कोई अच्छा फैशन करते हैं तो कहते हैं ना यह तो जैसे परी बन गई है। अभी तुम भी रतन बनते हो, बाकी मनुष्यों को उड़ने के पंख आदि हो नहीं सकते। ऐसे उड़ न सके, उड़ने वाली है ही आत्मा। आत्मा जिसको रॉकेट भी कहते हैं। आत्मा कितनी छोटी है। जब सब आत्माएं जाएंगी तो हो सकता है तुम बच्चों को साक्षात्कार भी हो। বাবা বলছেন যে আত্মা কত সূক্ষ্ম রকেট, তো আত্মা যখন পরমধাম যাবে তো বাবা বলছে হতে পারে যে তোমরা সাক্ষাৎকার করতে পারো, যেসব আত্মা এখন উপরে উড়ছে। बुद्धि से समझ सकते हो, यहाँ तुम वर्णन कर सकते हो सकता है जैसे विनाश देखा जाता है वैसे आत्माओं का झुंड भी देख सकते हैं कि कैसे जाते हैं। हनुमान गणेश आदि तो हैं नहीं, परंतु उनका भावना अनुसार साक्षात्कार हो जाता है। बाबा बोलছেন যে হনুমান বা গণেশ এমন কোনো দেবতা এরকম নেই, তো কিন্তু যারা মানুষ খুব ভক্তি সহকারে এদেরকে পুজো করে তো এদের ভাবনা অনুসারে সাক্ষাৎকার হয়ে যায়। बाबा तो है ही बिंदी, उनका क्या वर्णन करेंगे। कहते भी है ना छोटा सा स्टार है जिसको इन आँखों से देख नहीं सकते। शरीर कितना बड़ा है जिससे कर्म करना है। आत्मा कितनी छोटी है, उसमें 84 का चक्र नूंधा हुआ है। एक भी मनुष्य नहीं होगा जिसको यह बुद्धि में हो कि हम 84 जन्म कैसे लेते हैं, आत्मा में कैसे पाठ भरा हुआ है। वंडर है ना। বলছে দুনিয়াতে একটা মানুষ নেই যার বুদ্ধিতে এটা আছে যে আমরা 84টা জন্ম নিই। বলছে আত্মার মধ্যে কি করে 84 জন্মের পাঠ ভরা আছে, এটাও একটা বিশাল आश्चर्य। आत्मा ही शरीर लेकर पाठ बजाती है, वह होता है हद का नाटक। यह है बेहद का, तो बेहद का बाप खुद आकर अपना परिचय देते हैं। जो अच्छे सर्विसेबल बच्चे हैं वह विचार सागर मंथन करते रहते हैं, किसको कैसे समझाएं, कितना तुम एक एक से माथा मारते हो, फिर भी कहते हैं बाबा हम समझते ही नहीं। বলছে তোমরা কত এক একজনকে জ্ঞান বোঝাচ্ছ, কিন্তু মানুষ ভাবে যে আমরা কিছুই বুঝতে পারছি না। कोई नहीं पढ़ते हैं तो कहा जाता है यह तो पत्थर बुद्धि है। तुम देखते हो यहाँ भी कोई 7 रोज में ही बहुत खुशी में आकर कहते हैं बाबा पास चलें। कोई तो कुछ भी नहीं समझते, मनुष्य तो सिर्फ कह देते हैं पत्थर बुद्धि पारस बुद्धि, परंतु अर्थ नहीं जानते। आत्मा पवित्र बनती है तो पारसनाथ बन जाती है। पारसनाथ का मंदिर भी है, सारा सोने का मंदिर नहीं होता है, ऊपर में थोड़ा सोना लगा देते हैं। বলছে পারসনাথ একটা মন্দির আছে, তো সেখানে দেখানো হচ্ছে যে সোনা দেওয়া আছে, তো বলছে পুরো সোনা না, উপরে একটু সোনা লাগানো আছে। तुम बच्चे जानते हो हमको बागवान मिला है, कांटे से फूल बनने की युक्ति बतलाते हैं। गायन भी है ना गार्डन ऑफ अल्लाह। तुम्हारे पास शुरू में एक मुसलमान ध्यान में जाता था, कहता था खुदा ने हमको फूल दिया, खड़े खड़े गिर पड़ता था, खुदा का बगीचा देखता था।
अब खुदा का बगीचा दिखाने वाला तो खुद ही खुदा होगा। শুরুতে একটা মুসলমান ভাই আসতো, সে সাক্ষাৎকার করতো সত্যযুগে। তো দেখতো যে সেখানে ভগবান তাকে একটা সুন্দর ফুল দিয়েছে। তো বাবা বলছে এই সাক্ষাৎকার করানোর দায়িত্বটাও আমার আছে। और कोई कैसे दिखलाएंगे तुमको बैकुंठ का साक्षात्कार कराते हैं, खुदा ही ले जाते हैं, खुद तो वहाँ रहते नहीं। खुदा तो शांति धाम में रहते हैं, तुमको बैकुंठ का मालिक बनाते हैं। कितनी अच्छी अच्छी बातें तुम समझते हो। खुशी होती है ना, अंदर में बहुत खुशी होनी चाहिए। अभी हम सुख धाम में जाते हैं। अच्छे भीतरे कत खुशी हुआ दरकार जे एखन आमरा सुख धामे जाच्छी। वहाँ दुख की बात नहीं होती। बाप कहते हैं सुख धाम शांति धाम को याद करो, घर को क्यों नहीं याद करेंगे। आत्मा घर जाने के लिए कितना माथा मारती है, जप तप आदि बहुत मेहनत करती है, परंतु जा कोई भी नहीं सकते। झाड़ से नंबरवार आत्माएं आती रहती हैं, फिर बीच में जा कैसे सकती हैं। और से परम धाम থেকে আত্মাগুলো নাম্বারওয়ার নিচে আসবে, কিন্তু নিচে থেকে নিজে নিজে উপরে যেতে পারবে না যতক্ষণ বাবা না আসবে। तो जबकि बाप ही यहाँ हैं, तुम बच्चों को रोज समझाते रहते हैं शांति धाम और सुख धाम को याद करो। बाप को भूलने के कारण ही फिर दुखी होते हैं, माया का मोचरा लग जाता है। अब तो जरा भी मोचरा नहीं खाना है, मूल है देह अभिमान। बोलছে एकदम তোমরা যেন देह अभिमाने ना आसो। तुम अभी तक जिस बाप को याद करते थे, हे पतित पावन आओ, उस बाप से तुम पढ़ रहे हो। तुम्हारा ओबीडियंट सर्वेंट टीचर भी है, ओबीडियंट सर्वेंट बाप भी है। বলছে আমি তোমার ओबीडियंट सर्वेंट टीचर, ओबीडियंट सर्वेंट पिता। बड़े आदमी नीचे हमेशा लिखते हैं ओबीडियंट सर्वेंट। तो बाप कहते मैं तुम बच्चों को देखो कैसे बैठ समझाता हूँ। अच्छे যারা বড় বড় মানুষ হয় তারা নিচে সাইন করে যে योर ओबीडियंट सर्वेंट। तो बाबा বলছে আমিও তোমাদের ओबीडियंट सर्वेंट। सपूत बच्चों पर ही बाप का प्यार होता है। जो कपूत होते हैं अर्थात बाप का बनकर फिर ट्रेटर बन जाते हैं, विकार में चले जाते हैं, तो बाप कहेंगे ऐसा बच्चा तो नहीं जन्मता तो अच्छा था। एक के कारण कितना नाम बदनाम हो जाता है। বলছে সপুত বাচ্চাদের উপরে বাবার ভালোবাসা থাকবে, যারা কুপুত্র বা কপুত তাদেরকে বাবা কি করে ভালোবাসবে, তারা তো আরও বাবার নাম খারাপ করছে, ট্রেটার হয়ে যাচ্ছে। তো এরকম বাচ্চাদের জন্য বাবা ভাবছে যে এরকম বাচ্চা না জন্ম নিলেই ভালো ছিল। एक के कारण कितना नाम बदनाम हो जाता है, कितने को तकलीफ होती है। यहाँ तुम कितना ऊंच काम कर रहे हो, विश्व का उद्धार कर रहे हो, और तुमको 3 पैर पृथ्वी के भी नहीं मिलते। तुम बच्चे किसी का घर बार तो नहीं छुड़ाते हो, तुम तो राजाओं को भी कहते हो। तुम पूज्य डबल सिरताज थे, अब पुजारी बन पड़े हो। अब बाप फिर से पूज्य बनाते हैं तो बनना चाहिए ना, थोड़ी देरी है। हम यहाँ किसी के लाख लेकर क्या करेंगे। বলছে কারো লক্ষ টাকা নিয়ে আমরা কি করব, गरीबों को राजाई मिलनी है। बाप गरीब निवाज है ना। तुम अर्थ सहित समझते हो कि बाप को गरीब निवाज क्यों कहते हैं। भारत भी कितना गरीब है, उनमें भी तुम गरीब माताएं हो। जो साहूकार है वह इस ज्ञान को उठा न सकें। गरीब अबलाएं कितनी आती हैं, उन पर अत्याचार होते हैं।
बाप कहते हैं माताओं को आगे बढ़ाना है। प्रभात फेरी में भी पहले पहले माताएं हो, बैच भी तुम्हारे फर्स्ट क्लास हैं। यह ट्रांसलाइट का चित्र तुम्हारे आगे हो, सबको सुनाओ दुनिया बदल रही है। बाप से वर्षा मिल रहा है, कल्प पहले मुआफिक। बच्चों को विचार सागर मंथन करना है, कैसे सर्विस को अमल में लाएं। टाइम तो लगता है ना। अच्छा, मीठे मीठे सिखिला दे बच्चों प्रति, माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को पदम गुना नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहेंगे हंसते, बनेंगे फरिश्ते, चलेंगे परम धाम के सीधे रास्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। एबार धारणार मुख्य सार 1 नम्बर पॉइंट, बाप से पूरी पूरी प्रीत रख, मददगार बनना है। माया से हार खाकर कभी नाम बदनाम नहीं करना है। बलछे माया थेके हार खे कखनो नाम बदनाम करो ना बाबा। पुरुषार्थ कर देह सहित जो कुछ दिखाई देता है उसे भूल जाना है। बलछे पुरुषार्थ करे जा किछु तुम्हें चोखे देखछो सब किछु भूले जेते हबे। 2 नम्बर, अंदर में खुशी रहे कि हम अभी शांति धाम सुख धाम जाते हैं। बाबा ओबीडिएंट टीचर बन हमको घर ले जाने के लायक बनाते हैं। लायक सपूत बनना है, कपूत नहीं। बलछे लायक होते हबे तुम्हारे, सुपुत्र होते हबे, कपूत नय। आज का वरदान, त्रिस्मृति स्वरूप का तिलक धारण करने वाले संपूर्ण विजयी भव। त्रिस्मृति स्वरूप का तिलक धारण करने वाले संपूर्ण विजयी भव। बलछे 3टे जिनिसके सब समय मने राखो আর সেটারই তোমরা তিলক লাগাও, তাহলে সম্পূর্ণ বিজয়ী হতে পারবে। स्वयं की स्मृति, बाप की स्मृति और ड्रामा के नॉलेज की स्मृति, इन्हीं 3 स्मृतियों में सारे ज्ञान का विस्तार समाया हुआ है। नॉलेज के वृक्ष की यह 3 स्मृतियाँ हैं। जैसे वृक्ष का पहले बीज होता है, उस बीज द्वारा 2 पत्ते निकलते हैं, फिर वृक्ष का विस्तार होता है। ऐसे मुख्य है बीज बाप की स्मृति, फिर 2 पत्ते अर्थात आत्मा और ड्रामा की नॉलेज। तो इन 3 स्मृतियों को धारण करने वाले स्मृति भव व संपूर्ण विजयी भव के वरदानी बन जाते हैं। बाबा बोलছেন যে যেমন একটা বীজ হয় মাটির নিচে, তারপরে তার থেকে 2টো পাতা বেরোয়, তো ঠিক সেরকম বাবা হচ্ছেন বীজ আর 2টো পাতা হচ্ছে আত্মা আর ড্রামা। তো বাবার স্মৃতি আর নিজের আত্মিক স্বরূপের স্মৃতি আর ড্রামার স্মৃতি, এই 3টেকে সবসময় মনে রাখো, তো তোমরা সব পরিস্থিতিতে বিজয়ী হয়ে যাবে। আজকের স্লোগান, प्राप्तियों को सदा सामने रखो तो कमजोरियां सहज समाप्त हो जाएंगी। प्राप्तियों को सदा सामने रखो तो कमजोरियां सहज समाप्त हो जाएंगी। বলছে বাবা থেকে যা যা প্রাপ্তি পেয়েছো সেটাকে সামনে রাখো, তাহলে বাকি সমস্ত কমজোরিগুলো সহজেই সমাপ্ত হয়ে যাবে। ওম শান্তি।